ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا اور مسلسل آتی آوازیں میرے کانوں کے پردے کو پھاڑنے والی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ دیے تاکہ آوازیں آنا تھوڑا کم ہو جائیں، لیکن آواز مسلسل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ مجھے ہی بے چین کر رہی تھی اور میرے اندر خوف کو مزید ابھار رہی تھی۔ نہ جانے میں کس لمحے میں اس جگہ پر آ کر پھنس گیا تھا۔ آس پاس کوئی موجود بھی نہیں تھا جس سے پوچھ لیتا کہ آخر میں کہاں پر ہوں اور یہاں سے کیسے باہر نکل سکتا ہوں۔ گھر کا راستہ معلوم ہی نہیں تھا، نہ جانے کس دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے گاؤں وغیرہ کو چھوڑ کر میں کہیں اور ہی چلا آیا ہوں، ایک ایسی دنیا میں جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ ابھی بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ تبھی اچانک سے مجھے ایک طرف سے ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ اس چیخ کو سن کر تو میرے رہے سہے اور سان بھی خطا ہو گئے۔ ضرور یہاں پر کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے۔ میرے اندر سے آواز آئی کہ مجھے جلد ہی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، ورنہ میں یہاں پر کسی انہونی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ یہی سوچ کر میں اٹھا اور اپنے قدم آگے کی طرف بڑھا دیے، لیکن یہ تو بیابان اور ویران چٹیل میدان تھا۔ آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بھاگتا جا رہا تھا لیکن چاروں طرف دور دور تک صرف خالی میدان تھا، کوئی راستہ، کوئی سڑک، کچھ بھی نہیں تھا۔ تھک ہار کر میں میدان کے بیچوں بیچ بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ ایسی مصیبت اور بے بسی میں آج سے پہلے میں کبھی نہیں پڑا تھا۔ آج سمجھ آ رہا تھا کہ بے بس ہو جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ پتہ نہیں اتنی مشکل اور اتنی پریشانی میں بھی مجھے نیند کیسے آ گئی۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے اور گھنے جنگل میں پایا۔ یہاں بالکل سکون تھا اور چاروں طرف سکوت چھایا ہوا تھا۔ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب ہوا چلتی تو درختوں کے پتے ہلتے تو ان کے سر سرانے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا جاتی اور ایک مدھم سا سر بنا کر عجیب سا تاثر چھوڑ کر چلی جاتی۔ ابھی شاید میرے دیکھنے اور سننے کی حس جاگی تھی اور پھر آہستہ آہستہ محسوس کرنے کی حس بھی جاگنے لگی۔ مجھے اپنے ہاتھوں تلے کسی ٹھنڈی اور گیلی چیز کا احساس ہوا تو میں نے نگاہیں دوڑا کر دیکھا تو وہاں پر کیچڑ تھا۔ میں کیچڑ میں لت پت بیٹھا ہوا تھا۔ میرا پورا جسم کیچڑ کی ٹھنڈک کی وجہ سے سرد پڑ رہا تھا اور پھر میری باقی کی دو حصوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ اپنی زبان پر مجھے ایک بہت ہی عجیب سا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا اور فضا میں رچی بہت ہی عجیب سی بدبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے تازہ تازہ کسی کی قربانی کی ہے اور اس کے خون کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میری زبان پر موجود ذائقہ بھی خون کا ہی ہے۔ میں نے اپنی زبان باہر نکالی اور دیکھا تو وہ خون سے سنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے فوراً سے تھوکنا شروع کر دیا اور میرے منہ سے خون ہی خون نکل رہا تھا۔ میں نے اپنے دانتوں کو چیک کیا تو وہ سب صحیح سلامت تھے، یعنی میرے دانتوں سے خون نہیں نکل رہا تھا۔ تو پھر میری زبان پر یہ خون کہاں سے آ رہا تھا؟ جنگل میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے مجھے ایک چھوٹی سی ندی نظر آئی۔ میں فوراً اس ندی کے پاس گیا اور ہتھیلی میں پانی بھر کر کلیاں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے منہ سے خون آنا بند ہو گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں اور جسم پورا کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے اوپر سے پانی کی مدد سے کیچڑ صاف کرنا شروع کیا۔ نہ جانے میں اس میدان میں، اس جنگل میں کیسے پہنچ گیا تھا۔ میرے ساتھ بہت ہی عجیب عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ زندگی میں پہلے کبھی بھی میں اتنی بڑی مصیبت سے نہیں گزرا تھا۔ میرا نام اکرام ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک ٹیچر ہوں۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکل کر ایک لمبا فاصلہ طے کر کے اسکول تک آتا ہوں اور اسکول کے بچوں کو صبح سے لے کر شام تک پڑھاتا ہی رہتا ہوں۔ روزانہ کی طرح اس دن بھی میں اسٹاف روم میں بیٹھا کام کاج میں مصروف تھا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کافی وقت ہو چکا ہے
और मैं कॉपियाँ चेक करके थक चुका था। अब अपने सामने पड़ी कॉपियों को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था कि ना जाने अब और कितनी देर मुझे ये कॉपियाँ चेक करनी पड़ेंगी। मैं स्टाफ रूम में बैठा यही सब सोच रहा था। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई थी। सब लोग जा चुके थे और स्टाफ रूम बिल्कुल खाली था। आसपास कोई भी नहीं था और मुझे काफ़ी देर हो गई थी। वक्त देखा तो शाम हो रही थी। मैं सुबह और शाम दोनों की शिफ्ट में पढ़ाता था, इसलिए मुझे शाम तक यहीं रुकना पड़ता था। मगर आज तो मामूल से 1 घंटा ऊपर हो गया था। आखिर सब लोग कब गए मुझे पता क्यों नहीं चला। अमूमन कोई ना कोई बता ही देता है कि जाने का वक्त हो गया है, मगर मैं अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि अगर किसी ने मुझसे कहा भी होगा तो मैंने सुना ही नहीं था। थक हार कर मैंने अपने सामने पड़ी कॉपियाँ बंद की और अंगड़ाई ली। मैंने सोचा कि 2-3 मिनट अपनी कमर सीधी करता हूँ और उसके बाद यहाँ से चीज़ें समेट कर निकल जाऊँगा। घर जाते जाते मुझे मगरिब हो जानी थी। यहाँ से घर काफ़ी फासले पर था और मैं पैदल ही जाता था। वैसे भी गांव में गाड़ी वगैरह का इतना ख़ास बंदोबस्त नहीं था। शहर जाने में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ये तो फिर स्कूल से घर तक का फासला था। मेरा घर पहाड़ी के दूसरी तरफ था। सुबह स्कूल आने के लिए भी मैं जल्दी निकलता था। मेरे पास एक ही ज़रिया मौज था, इसीलिए शाम तक मुझे यहाँ काम करना पड़ता था। घर पर खाने वाले बहुत से लोग थे। पूरे ख़ानदान का ध्यान मुझे ही रखना होता था। मेरी 7 बहनें थीं और अभी उनकी शादी भी करनी थी। उनकी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा जहेज़ की ज़रूरत थी। मैं जितने भी पैसे कमाता था उनमें से आधे पैसे तो अम्मा बहनों की शादी और उनके जहेज़ के लिए संभाल कर रख देती थी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। बाकी के पैसे घर के खर्चों पर लग जाते थे। मैं 30 साल का हो चुका था, मगर मेरी अपनी शादी अब तक ना हुई थी। हमारे यहाँ एक रिवाज था कि जब तक घर की बेटियों की शादी नहीं हो जाती थी, बेटों की शादी नहीं की जाती थी। इसलिए अम्मा ने मेरे लिए अब तक कोई भी रिश्ता नहीं देखा था। मैं चाहता था कि अब मेरी शादी हो जाए। जब भी घर पर इस बारे में बात करता तो आगे से हमेशा बातें सुनने को मिलती कि तुम कितने खुदगर्ज हो, तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम्हारी बहनें अब तक कवारी घर पर बैठी हुई हैं। उनकी शादियों का कोई ज़रिया नहीं बन रहा, उनके कोई रिश्ते नहीं आ रहे। वैसे भी इतने गरीब घराने में कौन शादी करेगा, और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। घर वालों की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, क्योंकि मैंने अपना आराम छोड़कर हमेशा उनका ख्याल किया था और उनकी परवाह की थी। और वो अब मुझसे ऐसी बातें कर रहे थे जैसे मैं खुद तो बहुत ही ऐशो आराम में रह रहा हूँ और उनका ख्याल नहीं रखता हूँ। हालांकि हकीकत तो उससे उलट थी। मेरी बहनें मुझसे काफ़ी कम उम्र थीं, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप चाहते थे कि बेशक मैं बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँचूँ, लेकिन शादी पहले हमारे घर की लड़कियों की ही की जाएगी। मुझे ये नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। स्कूल में मेरे साथी टीचर अक्सर मेरा मजाक उड़ाते और कहते कि क्यों, क्या हुआ अकराम, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही है या शादी करने का इरादा ही नहीं है? कहो तो हम तुम्हारी कहीं बात चलाते हैं। मगर मैं उन्हें क्या बताता कि मेरे घर वाले ही मेरी शादी करने को फ़िलहाल राज़ी नहीं हैं। माशरे की इसी तरह की रस्मों से मैं पहले ही तंग पड़ा हुआ था। वैसे मैं फितरी तौर पर अलग थलग रहने वाला इंसान था। तन्हाई पसंद था, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता था और ज़्यादा नखरे भी नहीं करता था। कभी किसी से ये बात नहीं कहता था कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं अपने आप में मगन रहने वाला इंसान था। जो मिल जाता अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेता, लेकिन कभी कभी दिल करता कि मैं भी अपने लिए नए कपड़े खरीदूं और अपनी पसंद की कोई चीज़ लूं, लेकिन इन सब के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। जितनी भी तनख्वाह मिलती थी लाकर अम्मा अब्बा के हाथ पर रख देता था। अगर कभी 100-50 रुपये अपनी जेब में डाल भी दिए तो अम्मा कपड़े धोते हुए मेरे सारे कपड़ों की जेबें चेक करती, और अगर उन्हें मिल जाता कोई पैसा तो वावेला मचाती, जैसे मैंने उनके पैसे चुरा लिए हों। मुझे अम्मा की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं भी बाहर काम करता था, 100 ज़रूरतें पड़ जाती थीं।
लोगों के सामने शर्मिंदगी भी होती थी जब पैसा जेब में नहीं होता था। मगर घर वाले इन सबको समझते नहीं थे। कहते थे कि तुम हमसे पैसा छुपा कर रखते हो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, उसके बावजूद तुम हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हो। न जाने कैसी औलाद है आजकल की। फिर यही सब ड्रामा शुरू हो जाता था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पढ़ाने में अम्मा अब्बा का नहीं बल्कि मेरे मास्टर साहब का हाथ था। जब मैं छोटा था तो खेतों में खेलता रहता था, लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ते देखता तो मुझे पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया। मास्टर साहब ने जब देखा कि मैं इतना ज़हीन हूँ और पढ़ने का भी शौक़ रखता हूँ, तो उन्होंने मेरी फ़ीस माफ़ कर दी और मुफ्त में मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। अब्बा चाहते थे कि मैं खेतों में काम करूं, मगर मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ था। पढ़ लिख कर जब मैं बड़ा हुआ तो इसी स्कूल में मुझे नौकरी मिल गई और सब कहते थे कि ये सब इन्हीं का ही कमाल है। खैर, मैं खामोश हो जाता, आगे से कुछ ना बोलता। उन्हीं दिनों अम्मा अब्बा ने मेरी बहनों के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए, मगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। अम्मा चाहती थी कि किसी अमीर घर में बहनों की शादी की जाए, मगर अम्मा को क्या समझाता कि शादियां अमीरी गरीबी से कामयाब नहीं होती। बहरहाल मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर मैं बोलता तो सबको बुरा लगता। इसलिए मैंने इन मामलात से दूर रहना ही बेहतर समझा। उन्हीं दिनों एक दिन जब छुट्टी हो गई थी और तमाम बच्चे चले गए, तो एक आदमी परेशान हाल सा मेरे पास आया और कहने लगा, मास्टर साहब, आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, मैं ख़ास आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैंने उससे कहा कि जी बताएं, क्या बात है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी बच्ची पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपकी क्लास में ही पढ़ती है, अभी नया नया उसने दाखिला लिया है। हम पहले दूसरे गांव में रहते थे, वहाँ पर भी रोज़ उसके असातिज़ा उससे परेशान रहते थे, लेकिन जब से आपके पास पढ़ना शुरू हुई है तो उसने मुझसे कहा है कि आपकी पढ़ाई उसकी समझ में आती है। अब आप मुझे मना मत करिएगा, मैं आपको अच्छी फ़ीस दूंगा, बस मेरे घर आकर मेरी बच्ची को कुछ वक्त के लिए पढ़ा देना। वो मुझसे दरख्वास्त कर रहे थे, इसलिए मैं राज़ी हो गया और कहा कि ठीक है, मैं आपकी बच्ची को आकर ट्यूशन पढ़ा दिया करूँगा, लेकिन मैं पैसे एडवांस में लूँगा। वो मेरी बात सुनकर राज़ी हो गए और चले गए। दरअसल मैंने एडवांस पैसों की इसलिए बात की थी क्योंकि आजकल मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। स्कूल में एक फंक्शन होने वाला था और तमाम असातिज़ा पैसे जमा करवा रहे थे। ऐसे में मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। अम्मा से मांगता तो वो मुझे 100 बातें सुनाती। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, इस ट्यूशन से मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। यही सोचकर अगले दिन ही मैं स्कूल से जल्दी फारिग हुआ और फ़ौरन से उस लड़की के साथ उसके घर पहुंच गया। पूरे रास्ते उस लड़की ने एक भी बात नहीं की और खामोशी से आगे आगे चलती रही। मुझे उसके इस अंदाज से लगा कि वो बहुत ही शरीफ और सुलझी हुई लड़की है। मैंने दिल ही दिल में शुक्र किया कि चलो कम से कम मुझे परेशान नहीं करेगी, क्योंकि इस तरह किसी को ट्यूशन पढ़ाने का ये मेरा पहला तजर्बा था और मैं अंदर से थोड़ा घबरा भी रहा था कि मैं एक लड़की को अकेले ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो कहीं कोई मसला ना खड़ा हो जाए। गांव वाले मेरी खूब इज्जत करते थे। यहाँ पर वैसे भी टीचर्स की बहुत इज्जत की जाती थी। थोड़ी देर बाद हम उसके घर तक पहुँच गए। उस लड़की का नाम नौशीन था और वो कुछ अर्सा पहले ही मेरी क्लास में आई थी। शुरू से ही वो हमेशा चुप चुप रहती थी, मगर मैंने एक बात नोट की थी, वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखती थी, यूं जैसे कुछ कहने और कुछ बताने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं उसे नज़रअंदाज कर देता था। अब जब मैं उसे ट्यूशन पढ़ाने उसके घर आया तो देखा उसके घर पर उसके अब्बा और उसके अलावा कोई नहीं रहता। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उस लड़की से उसकी माँ और रिश्तेदारों के बारे में कोई सवाल जवाब करूं, इसीलिए खामोशी से अपने काम पर लग गया। मैंने उससे कहा कि अपनी किताबें निकालो ताकि मैं उसे पढ़ाना शुरू करूं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि सर जी, इतनी जल्दी भी क्या है, सब्र करें, मैं आपको शरबत बना कर ला कर देती हूँ। और फिर वो किचन में गई और थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके हाथ में शरबत का गिलास था।
शरबत पीने के बाद मैंने उससे कहा कि चलो अब काम शुरू करते हैं, बहुत देर हो चुकी है, मुझे वापस भी जाना है। मैंने महसूस किया कि उसकी अब्बा उस वक्त घर पर नहीं थे और वो घर पर अकेली ही थी। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि कोई भी अपनी जवान जहान बेटी को ऐसे किसी मर्द के साथ, बेशक पढ़ाई के बहाने ही सही, अकेले नहीं छोड़ता। तो उसका बाप इतना गाफिल कैसे था कि उसने इस लड़की को मेरे साथ घर पर अकेले छोड़ दिया, हालांकि वो जानता था कि मैं उस वक्त इसकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आऊँगा। क्या उसे मुझ पर कुछ ज़्यादा ही एतबार था? आखिर था तो मैं भी इंसान ही ना, कभी भी नफ्स की गुलामी कर सकता था और शैतान मुझे भटका भी सकता था। मैं उस लड़की को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही अजीब नज़रों से जैसे वो मुझे क्लास में देखा करती थी। और मैं उसके मुसलसल देखने से खाइफ हो गया और मैंने उससे कहा कि नौशीन बेटा, आखिर क्या बात है जो आप मुसलसल मुझे देखे जा रही हैं? क्या कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं? मेरे यूं कहने पर वो फ़ौरन से गुस्सा हो गई और बोली, मुझे बेटा क्यों बुला रहे हैं? आप अभी लगभग 25-30 साल के ही तो होंगे, वैसे भी अपनी उम्र से काफ़ी कम लगते हैं। इतने हैंडसम हैं और फिर मुझे ऊपर से बेटा बुला रहे हैं, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो मैं दंग रह गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो शरीफ से नज़र आने वाली लड़की मुझसे ऐसी बात भी कहेगी। मैंने फ़ौरन से ख़ुद को संभाला और उसे घूरी से नवाजा, फिर पढ़ाने लग गया। अगले कई दिन तक यही सब होता रहा। जब मैं उसे पढ़ाने बैठता, वो इधर उधर की बातों में मशगूल हो जाती और पढ़ाई में उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था, बस मुझे घूरती रहती। अक्सर तो वो एक बहुत ही अजीब हरकत करती थी, कमरे की रोशनी बुझा देती और चुपचाप एक कोने में अंधेरे में बैठकर न जाने क्या क्या करती थी। मैं जब भी उससे पूछता तो वो मेरी बात को टाल देती। एक दिन उसने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि मैं आज एक शर्त पर पढ़ाई करूंगी। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा, तुम पढ़ाई करने के लिए भी शर्तें रखती हो? वो बोली, हाँ मैं रखती हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने सोचा कि चलो इसकी बात मान लेता हूँ, शायद फिर ही वो पढ़ाई पर ध्यान दे दे। वैसे भी इम्तहानात शुरू होने वाले थे और उसका पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसने मुझसे कहा कि ये पट्टी आप आंखों पर बांध ले और जब मैं कहूँ तो इसे उतार देना। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैंने उसके कहने पर उसके हाथ से पट्टी लेकर अपनी आंखों पर बांध ली और फिर शायद उसने लाइट ऑफ कर दी थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पट्टी उतारने को कहा। मैंने अपनी आंखों पे बंधी पट्टी उतारी तो देखा हर तरफ अंधेरा था और वो मुझे कमरे के एक कोने में बैठने का इशारा करके खुद न जाने क्या कर रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो लबों ही लबों में कुछ पढ़ रही है। एक तरफ से धुआं उठ रहा था। मैंने उससे कहा कि आखिर तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो मुझे बिना जवाब दिए अपने काम में मशगूल रही। थोड़ी देर बाद वो मुझे लिए बाहर आ गई। जैसे ही मैं बाहर आया तो मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थी। अंधेरे में रहने की वजह से मेरी आंखें चुंदिया गई थीं। अंधेरे से अचानक से जब रोशनी में आते हैं तो यूं ही होता है, आंखें खुल नहीं पाती। इतनी देर उसने मुझे अंधेरे में रखा था और न जाने खुद क्या करती रही थी। इतनी अजीब अजीब हरकतें करती थी कि कभी कभी तो मेरा दिल करता था उसके बाप से शिकायत करूं कि आपकी बेटी पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती है, बल्कि उल्टे काम करती रहती है जिनके बारे में मुझे कुछ भी इल्म नहीं। लेकिन खुद मुझे भी तजस्सुस होता था कि आखिर वो करती क्या है। उस बंद कमरे में आखिर ऐसा क्या है जिसमें वो हमेशा अंधेरा किए रखती है और मुझे ले जाकर एक कोने में बिठा देती है और ख़ुद कहीं गायब हो जाती है। रोज़ाना 2 घंटे पढ़ाई के बहाने वो यही सब किया करती थी। अब तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला था। एक दिन मैंने उससे सख्ती से मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो अपने बाप का पैसा और मेरा वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो? दरअसल तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि ऐसे कामों में दिलचस्पी है जो तुम अपने बाप को बता नहीं सकती हो। ज़रूर तुम कुछ गलत कर रही हो, इसलिए उनसे छुप छुप कर रहती हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वो मुझसे कहने लगी,
आप मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप मुझे और मेरे बाप को दरअसल जानते ही नहीं। जिस दिन आप हम दोनों के बारे में जान लेंगे, उस दिन आपको अपनी बातों पर पछतावे का सामना करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों से दहकते हुए अंगारे निकल रहे थे। यूं ही लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से मुझे झुलसा देगी। और वो बोल रही थी तो उसकी आवाज़ भी गुर्राहट नुमा लग रही थी। कुछ पल तो मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर कल से तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं यहाँ आना ही छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो परेशान हो गई और फिर बोली, नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं कल से पढ़ाई करूँगी, लेकिन सिर्फ 1 घंटे। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। दरअसल मसला ये था कि मैं ये काम नहीं छोड़ सकता था। अगर मैं उसे ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देता तो जो कुछ पैसे मेरे पास आ रहे थे वो भी चले जाते, और मुझे अपने लिए कुछ पैसे जमा करने की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। अम्मा अब्बा से ये बात तो मैं पहले ही छुपा चुका था कि मैं किसी को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैंने उनसे कहा था कि मुझे स्कूल में आजकल बहुत देर तक काम होता है, इसलिए मैं देर से घर वापस आता हूँ। ये उज़र वैसे भी काफ़ी अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि अम्मा अब्बा जानते थे कि मैं अक्सर स्कूल से देर से ही घर आया करता था, इसीलिए वो ज़्यादा सवालात नहीं करते थे। मगर मैं उन्हें यह बात बता देता कि मैं स्कूल के बाद किसी लड़की को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और उसका बाप मुझे अच्छे पैसे भी देता है, तो वो मुझसे सारे के सारे पैसे ले लेते और कहते कि तुम्हारी बहनों की शादी करनी है। वो इसी बहाने से मेरी सारी जमा पूंजी भी मुझसे ले लेते थे, यहाँ तक कि मुझे अपने खर्चे के लिए भी उनसे 1-1 रुपए की भीख मांगनी पड़ती थी। ये करते हुए मेरी इज़्ज़त नफ्स बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी, इसलिए मैंने ये बात उनसे छुपाना बेहतर महसूस किया था। हमारा घर पहाड़ी के दूसरी तरफ था, इसलिए ज़्यादातर लोग जो स्कूल की तरफ रहते थे वो मेरे माँ बाप को नहीं जानते थे। बस उन्हें मेरे बारे में इतना ही पता था कि मैं पहाड़ी के दूसरी तरफ रहता हूँ और वहीं से इस स्कूल में पढ़ाने के लिए आता हूँ। चूँकि मेरे स्कूल में भी ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं थी, इसलिए मुझे इस बात का डर भी नहीं था कि कोई घर जाकर मेरे बाप को सब कुछ बता देगा कि मैं उनसे छुपकर किसी लड़की को ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। इस तरफ से तो मुझे मुकम्मल इत्मीनान था। मगर असल मसला तो ये लड़की थी जो पढ़ने का नाम ही नहीं लेती थी और पढ़ाई के नाम पर मेरा वक्त और दिमाग ही ख़राब कर रही थी। कई बार सोचता कि इसके बाप को शिकायत लगा ही दूँ, मगर हर बार वो मुझसे माफ़ी मांगती और कहती कि आप मुझे मोहलत दें, मैं ज़रूर पढ़ाई करूँगी। लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन जब मैं उसके घर पर पढ़ाने के लिए आया तो देखा वो उदास और खामोश बैठी थी। मैंने उससे कहा कि ऐसी क्या बात है, इतने दिनों में आज पहली बार तुम्हें उदास देख रहा हूँ। रोज़ की तरह तुम खिलखिला नहीं रही हो, वरना मेरे आने पर तो तुम खुश हो जाती थी, हालांकि तुम पढ़ाई तो करती नहीं। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मैं किसी मुश्किल का शिकार हूँ और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैंने उससे कहा, अगर कोई ऐसी बात है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताओ, जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगा शायद पैसों की वजह से या किसी और वजह से परेशान होगी, मगर उसने जो कुछ मुझे आगे से कहा वो सुनकर तो मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की मुझसे ऐसा मुतालबा भी कर देगी। मैंने उसे फ़ौरन से मना कर दिया और कहा कि ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। दरअसल वो मुझसे कह रही थी कि सर, आप मुझसे शादी कर लें। उसकी बात सुनकर वाकई में मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। कोई इस तरह से कैसे कह सकता है? मुझे तो वो लड़की बहुत ही शरीफ लगती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी बात भी करेगी। मैंने उसे डपट कर खामोश करवाया और कहा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। अगर तुम्हारे नंबर कम आए तो तुम्हारे अब्बा को मैं क्या जवाब दूंगा? वो तो मुझे ही इल्ज़ाम देंगे ना कि मैं घर आकर पढ़ाता हूँ, तब भी उनकी बेटी के नंबर अच्छे नहीं आए। आखिर मैं पढ़ाई के बहाने क्या करता हूँ? मैं अपनी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने दे सकता। तुम्हें अगर नहीं पढ़ना तो अपने अब्बा से कह दो कि मैं पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इतने अरसे में पहली बार
इतने सख्त लहजे में मैंने उस लड़की से बात की थी। मेरा 2 टोक इनकार सुनकर और मेरी डांट सुनकर उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल पीला पड़ गया। उसने मुझे कहा कि ठीक है, अभी तो तुम मुझे मना कर रहे हो, देखना कल तुम खुद आओगे और मुझसे कहोगे कि शादी कर लो। उसकी बात सुनकर मैं ज़ोर से हंस पड़ा और मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं हरगिज़ भी तुम्हें आकर ये सब नहीं कहूँगा। तुम अभी बच्ची हो, कुछ भी सोच रही हो। चलो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये कहकर मैं उसके घर से बाहर निकल आया। सारे रास्ते मुझे उसकी बात सोचकर गुस्सा आ रहा था कि आजकल के बच्चे कितने बिगड़ गए हैं। कैसे मुंह फाड़कर उसने मुझसे कह दिया कि मुझसे शादी कर लो। बेहतर है कि उसके अब्बा से बात करता हूँ और उसे पढ़ाना ही छोड़ देता हूँ। वैसे भी उसने मुझे परेशान कर रखा है, पढ़ाई में तो उसको ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। यही सब सोचते मैं घर में चला आया। अब्बा ने कहा कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैंने वक्त देखा तो आज मुझे मामूल से थोड़ी देर हो गई थी। मैंने उन्हें कहा थोड़ा काम था इसलिए देर हो गई। मेरी बात टाल देने पर अम्मा मशकूक नज़रों से मुझे घूरने लगी और मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गई और बोली, सच बता, आखिर तू कहाँ गया हुआ था? रोज़ बरोज़ तू बहाने बनाता है कि काम आ गया था, तो वो काम आ गया था। मैं सच जानना चाहती हूँ, हमारे पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रहा? मैंने अम्मा से कहा कि क्यों हर वक्त मुझ पर शक करती रहती हैं? मैंने बताया तो है कि कुछ नहीं हुआ, बस किसी काम में मसरूफ़ था। आजकल वैसे भी मैं चिड़चिड़ा होता जा रहा था। दरवाज़ा बंद करके चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे परेशान करे और फिर मैं सोचों में मगन हो गया। आखिर उस लड़की ने मुझे ऐसी बात क्यों कही? उसका मकसद क्या था? और फिर बाद में वो इतना गुस्से में क्यों आ गई थी? और उसने तो मुझसे ये भी कहा था कि तुम कल खुद आओगे और मेरी बात मानोगे। भला मैं क्यों जाऊंगा उसके पास, वो भी शादी करने के लिए? कुछ भी सोचती रहती है। लगता है फिल्में और ड्रामे कुछ ज़्यादा ही देखती है और उसी का असर है उसके ऊपर। ये सब सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में कब चला गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह घर में होने वाले शोर से मेरी आंख खुली। अजीब सा शोर मचा हुआ था। वैसे तो अम्मा सुबह सवेरे मेरे बहन भाइयों में से किसी न किसी को डांट ही रही होती थी, मगर आज ये शोर मामूल से हटकर था। यूं लग रहा था जैसे मोहल्ले वाले जमा हुए हैं और सब मिलकर किसी बात पर बहस कर रहे हैं। मैं आंखें मसलते उठकर बाहर आया तो देखा कि अम्मा भी दरवाजे पर खड़ी हैरत से मुंह खोले लोगों की बातें सुन रही थी। मैं करीब आया तो लोग मुझे देखकर इशारेबाजी करने लगे और इशारे कनायों में कुछ न कुछ बोल रहे थे। मैं हैरान हुआ कि मेरी तरफ इशारा करके लोग क्या कह रहे हैं। मैंने अम्मा से पूछा कि क्या हुआ है, सुबह सुबह लोग हमारे दरवाजे पर क्यों जमा हैं? अम्मा बोली, तू अंदर चल, मैं तुझसे अभी बात करती हूँ। ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझे लिए अंदर कमरे में चली आई और बोली, बता मुझे, तू क्या करके आया है? रोज़ाना देर देर से आता है। मोहल्ले वाले झूठ थोड़ा ही बोल रहे होंगे, कोई ना कोई बात होगी, तभी तो इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है। जल्दी बता क्या किया है। अम्मा मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं बता रही थी कि हुआ क्या है, मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं। मैंने अम्मा से कहा कि आराम से बैठकर मुझे बताएं कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि मोहल्ले वाले कह रहे हैं तुम दूसरे गांव में किसी लड़की को ट्यूशन पढ़ाते हो और वहीं तुमने उस लड़की के साथ गलत किया है और उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। सब लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सुनकर तो मेरी हैरत की इंतहा न रही और मैं फ़ौरन से परेशान हो गया। अम्मा से कहा कि अम्मा, आप मुझे जानती नहीं हैं क्या? मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ? ठीक है, मैं मानता हूँ मैं उसे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ये बात मैंने आप लोगों से छुपाई, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं है और ना ही मैंने कभी उसे गलत नज़र से देखा है। ये सब लोगों की खुद की बनाई हुई बातें हैं। मैं तो अच्छी मुसीबत में फंस चुका था। अम्मा मेरी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। पहले तो उन्हें इस बात का गम लगा हुआ था कि मैंने उन्हें बिना बताए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और ये बात उनसे छुपाए रखी, और दूसरा ये कि मैं वहाँ जाकर उस लड़की के साथ कुछ गलत कराया हूँ।
हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपनी वजाहत नहीं दे पा रहा था, कोई समझने को तैयार नहीं था। मोहल्ले वाले मुसलसल मुझे लान तान किए जा रहे थे। ऐसे में मैं अपनी सफाई पेश करता भी तो कैसे करता, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। सब मुझे बुरा भला कहने लगे। अपने ऊपर ऐसे इल्ज़ामात में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं फौरन से घर से बाहर निकला और भागा भागा उस लड़की के घर की तरफ जाने लगा। लोग मुझे देख देख कर तरह तरह की बातें बना रहे थे, मगर मैंने लोगों को नज़रअंदाज किया। थोड़ी देर बाद मैं उस लड़की के घर के बाहर खड़ा था। कल उसने बिल्कुल सही कहा था कि मैं खुद ही उसके पास आऊँगा। अब अपने दामन पर लगे इस दाग को धोने के लिए मुझे उसके पास आना पड़ रहा था, और मैं उसके दरवाजे पर खड़ा था। कैसा वक्त आ चुका था मुझे खुद ही हंसी आई। मैं जो कल बड़े ही फ़ख्र से और बड़े ही एतमाद से उससे ये बात कहकर गया था कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा, अब मुझे उसी की ज़रूरत पड़ रही थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और कहा कि नौशीन, दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यूं लग रहा था कि घर अंदर से खाली है। फिर मैंने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। शायद अंदर से खुला हुआ था। एहतियात से अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। पूरा घर खाली नजर आ रहा था। अंदर कमरे में भी कोई नहीं था, यानी वो लोग यहाँ मौजूद ही नहीं थे। आखिरकार इतनी बदनामी मेरी हो रही थी और ये दोनों गायब थे। आखिर दोनों बाप बेटी कहाँ गए? मैं अब लोगों के सामने इस बात का सबूत कैसे लाऊंगा कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ उसे ट्यूशन पढ़ाता रहा हूँ। न जाने किसने ऐसी खबरें फैला दी थी। शायद किसी ने मुझे उसके घर से निकलते देख लिया हो और ये झूठी बातें खुद से बना बना कर फैला दी हों। लोगों को तो मौका चाहिए होता है किसी की इज्जत खराब करने का, और उन्हें वो मौका मिल चुका था। इतने सालों की कमाई इज्जत मट्टी में मिल रही थी। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे किसी भी हाल में उस लड़की को ढूंढना ही था। मगर मैं पूरा घर छान चुका था, लेकिन वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि उनके कोई रिश्तेदार वगैरह इस गांव में रहते हैं या नहीं। आसपास के लोग भी उन्हें ज़्यादा नहीं जानते थे, और वैसे भी कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबकी ज़बानों पर मेरे किस्से आम हो चुके थे। जो करना था मुझे खुद ही करना था। मैं थक हार कर घर के पिछले वाले सहन में बैठ गया। अभी मैं बैठा इन तमाम हालात के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरी निगाह वहाँ मौजूद एक पत्थर पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा हुआ था। मुझे हैरत हुई कि एक पत्थर पर आखिर क्या लिखा होगा। यही सोचकर तजस्सुस में मैं उठकर उस पत्थर के करीब आ गया, और जूं ही पत्थर को उठाकर देखा तो उस पर लिखे जुमले को पढ़कर तो मेरे हवास ही खो गए। यूं लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में जी रहा हूं या कोई ख्वाब देख रहा हूं। अपने आप को चुटकी काटी, लेकिन ये तो हकीकत थी, और मैं इस हकीकत से हरगिज़ भी मुंह नहीं मोड़ सकता था। मेरी हालत तो ऐसी हो रही थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। अब मैं क्या करता? मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गया। जो होना था वो तो हो गया था, लेकिन लोगों की ज़बानों से खुद को कैसे बचाऊंगा? और ये जो अभी अभी हकीकत मुझ पर आश्कार हुई है, उसका सामना कैसे करूंगा? और इस हकीकत को कबूल कैसे करूंगा? इन सब सवालों के जवाबात मेरे पास नहीं थे। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। जितनी इज्जत कमाई थी वो सब तो गंवा दी थी, और लोग मुझे लान तान कर रहे थे। मगर मुझ पर अभी अभी जो हकीकत खुली थी उसने मुझे मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर दिया था। आखिर मुझे कभी महसूस क्यों नहीं हुआ? मैं पत्थर अपने हाथ में पकड़े चुपचाप उस घर से बाहर निकला। आखिरी बार उस घर की तरफ निगाह की और दरवाजे पर ताला लगाकर वहां से सर झुकाए अपने घर की तरफ चल पड़ा। लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से घूर रहे थे, मगर उस वक्त मुझे उनकी नज़रों की कोई परवाह नहीं थी। मैं पहाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ आया जहां मेरा घर मौजूद था। अभी भी लोग घर के दरवाजे के बाहर जमा थे और अम्मा अब्बा से तरह तरह के सवालात कर रहे थे। अम्मा अब्बा ने जब मुझे घर की तरफ आते देखा
तो फौरन से कहा कि जल्दी अंदर आओ, हम दरवाज़ा बंद करने वाले हैं, वरना मोहल्ले वाले तो हमारी जान खा रहे हैं। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं जानता था कि अम्मा अब्बा अगले कई सालों तक मुझे ये सब बातें सुनाते रहेंगे और मेरा जीना हराम होता रहेगा, लेकिन उस वक्त मुझे इस पत्थर और इस पर लिखी तहरीर पर तवज्जो देने की ज़रूरत थी। इसलिए मैं अम्मा अब्बा को बिना कोई जवाब दिए चुपचाप घर के अंदर दाखिल हुआ और कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बाहर अम्मा और अब्बा मेरी इस हरकत पर तिलमिला कर रह गए। उन्हें लग रहा था कि शायद मैं अपने बारे में कुछ वजाहत पेश करूंगा और उनसे माफ़िया मांगूंगा कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन वजाहत तो मैं पहले ही दे चुका था और जिसे सुनने की किसी ने भी तौफीक नहीं की थी। और अब तो मेरा दिमाग वैसे ही उलझ चुका था। मैं अंदर आया और जो चुपचाप वो पत्थर हाथों में लेकर बैठ गया। उस पर लिखी तहरीर को मैं बार बार पढ़ता जा रहा था और ख़ुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जो इस पर लिखा है वही हकीकत है। उसी वक्त मेरे कमरे की खिड़की बजी। मैंने देखा कि मैं कमरे की खिड़की बंद करना भूल गया था, लेकिन ये खिड़की बजा कौन रहा है? शायद मोहल्ले के शरारती बच्चे होंगे। उन्हें भी मेरे बारे में ये सब बातें पता चल गई होंगी और वो अब मेरा मजाक उड़ाने आए होंगे। क्या अब मेरी इतनी ही औकात रह गई थी कि मोहल्ले के बच्चे आकर मुझे बेइज्जत करें? मैं बेदिली से यही सब सोचता उठकर खिड़की की तरफ आया कि चलो खिड़की बंद कर देता हूँ। अभी मैं खिड़की का पट बंद करने ही लगा था कि यूं लगा जैसे पीछे से उसे कोई खींच रहा है। मैंने जो ही सर बाहर निकाल कर देखा तो मेरे हलक से चीखें निकल गई, क्योंकि मेरे सामने तो वही लड़की और उसका बाप खड़ा था। उन्हें देखकर तो मैं डर गया। उस लड़की ने मुझसे कहा कि अगर इन सब की सच्चाई जानना चाहते हो तो हमारे पीछे आओ। मैं उनके पीछे जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन यूं लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत है जो मुझे उनके पीछे जाने पर मजबूर कर रही है। मैं वहीं खिड़की से फलांग कर घर के पिछले हिस्से में पहुंच गया। वो दोनों मेरे सामने खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। मैंने उनसे कहा कि क्या इस पत्थर पर लिखी तहरीर सच है? तो उन्होंने कहा हाँ। क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? फिर वो लड़की जोर जोर से मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाने लगी। मैं मुसलसल उसके हाथों को देखे जा रहा था और यूं लगा जैसे मेरा दिमाग कोई कंट्रोल कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद मैं बेहोश हो गया। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक चटियल मैदान में पाया। आस पास सिर्फ मैदान ही था और कोई निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और फिर मैंने खुद को एक जंगल में पाया। मैं जंगल में बैठा कीचड़ में लत-पत था। नदी के पानी से मैंने अपने जिस्म पर लगा कीचड़ धोया और इधर उधर देखा तो वहाँ पर सिर्फ वही पत्थर पड़ा हुआ था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था, ना ही वो लड़की और ना ही उसका बाप। ये जंगल तो मेरे गांव के पास वाला ही जंगल था। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मुझे मालूम था। मैंने एक नज़र उस पत्थर को देखा जिस पर लिखा था कि हम दोनों इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं, और इस हकीकत को अब मैं कबूल कर चुका था। मैंने मिट्टी खोदी और पत्थर उसमें रखकर उससे दफना दिया और ख़ुद हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल से बाहर निकल आया, इस इरादे के साथ कि मैं दोबारा कभी किसी पर भरोसा नहीं करूँगा और इस जंगल में गलती से भी नहीं आऊँगा। अगर ज़िंदगी में कभी वो दोनों मुझे नज़र भी आए तो भी मैं उनकी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं नहीं जानता कि वो लड़की और उसके बाप का मकसद क्या था, लेकिन अपनी ज़िंदगी का ये भयानक वाक़या मैं कभी भी भूल नहीं सकता।